Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are studying mathematics for class 12 and it's chapter number 2, which is a differentiation. Today is our lesson number 22. In this lesson, we will study differentiation of parametric functions. In chapter number 1, you have studied the definition of parametric equations. The parametric function is a function in which y is defined as a function of x by representing both y and x in terms of a third variable known as a parameter. Such equations or functions are called parametric equations or parametric functions. Now this is a function which is represented by these two equations. These equations are called parametric equation. X is a function of t and y is also a function of t. So this type of equations are called parametric equation of a function. How we will differentiate this type of equations? The rule is first differentiate separately both functions with respect to the parameter. अब इसका पैरामीटर कुछ भी हो सकता है, t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है. तो जो इसका पैरामीटर है उसके रिस्पेक्ट आपने x को डिफरेंशिएट करना है. dx ओवर dt आप फाइंड आउट कर लेंगे. अगर थीटा होगा तो dx ओवर d थीटा. इस केस में dy ओवर dt अलग अलग इन दोनों फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर. इफ पैरामीटर इज t, you will differentiate this with respect to t. If parameter is theta, you will differentiate these two equations with respect to theta. Then use chain rule to find dy over dx. तो हमें dy over dx फाइंड आउट करना है. dy over dx, इसमें देखें ऊपर न्यूमरेटर में dy है, तो यहाँ पे पहले हम dy over dt लिखेंगे. डिनोमिनेटर में है dx, तो डिनोमिनेटर में dx आप फाइंड करेंगे dx over dt. तो dt को न्यूमरेटर में लेके जाना है चेन बनाने के लिए. तो ये जो भी आंसर आएगा इसका dx ओवर dt का, उसका रेसिप्रोकल जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, क्योंकि dt ओवर dx इज द रेसिप्रोकल ऑफ dx ओवर dt. तो dx ओवर dt का जो भी रेसिप्रोकल होगा उससे हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे. या फिर dx ओवर dt इज इक्वल टू जो भी आंसर है इसका भी रेसिप्रोकल ले लें. dt ओवर dx इज इक्वल टू इसकी जो वैल्यू होगी उसका भी रेसिप्रोकल ले लें और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे इन दोनों को, तो आपके पास dy ओवर dx आ जाएगा. सो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. Find dy over dx of the following parametric functions. Its first part is x is equal to theta plus 1 over theta and y is equal to theta plus 1. Now look at this. Theta is the parameter in this case. X is defined in terms of theta and y is also defined in terms of theta. So we will differentiate dx with respect to theta and find dx over d theta and y with respect to theta, and we will find dy over d theta. Now since x is equal to theta plus 1 over theta, this can be written as theta plus theta to raise power minus 1. Differentiate this with respect to theta, we will get dx over d theta, and the derivative of theta is 1 and derivative of theta to raise power minus 1. पावर रूल लगाएंगे तो पावर 1 नीचे आएगी और इसकी एक पावर कम हो जाएगी which is theta to raise power minus 2. and now this can be written as 1 minus 1 over theta square. इसका एलसीएम लेंगे तो थीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया और थीटा स्क्वायर माइनस 1 dx ओवर डी थीटा आ गया. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो dy ओवर डी थीटा फाइंड करेंगे. डी थीटा प्लस 1 का डेरिवेटिव, थीटा का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 1. Now by chain rule we need to find dy over dx. So dy over dx में चेन क्या बनेगी? पहले dy वाली वैल्यू dy over d थीटा और d थीटा इसके न्यूमरेटर में d थीटा ओवर dx. dy over d थीटा तो 1 है और d थीटा ओवर dx, देखिए dx ओवर d थीटा था थीटा स्क्वायर माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर. तो d थीटा ओवर dx किसके इक्वल होगा? थीटा स्क्वायर माइनस 1 डिनोमिनेटर में और थीटा जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा. थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1. तो dy ओवर dx जो है वो थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा इसका आंसर.
Now we will solve part 2, which is important for your examination point of view, and this question will be set in as a long question. Again, the two parametric equations are given and you are asked to find dy over dx. So we will differentiate x with respect to t. The parameter here in this case is t. So differentiating with respect to t, dx over dt, a is constant, d over dt 1 minus t square over 1 plus t square. अब ये क्वोशंट है तो यहाँ पे हम क्वोशंट रूल अप्लाई कर देंगे, a वैसे ही आ जाएगा 1 plus t square as it is and derivative of the numerator 1 minus t square minus numerator as it is 1 minus t square and derivative of the denominator 1 plus t square 1 प्लस टी स्केयर एज इट इज और इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी स्केयर का डेरिवेटिव माइनस 2t माइनस 1 माइनस टी स्केयर एंड 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्केयर का डेरिवेटिव प्लस 2t आ जाएगा. ये ब्रैकेट्स रिमूव करेंगे तो माइनस 2t से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2t और माइनस 2t क्यूब, इसको माइनस 2t को 1 माइनस टी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2t प्लस 2t cube. 2t cube is cancelled with the 2t cube and we are left with minus 4at over 1 plus t square का square and this gives us, देखें हमने चूंकि चेन रूल में dt over dx करना है तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया. इसका रेसिप्रोकल जो है वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आके 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओवर 1 माइनस 4at आ जाएगा. अब इस सेकंड इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका डेरिवेटिव भी क्वोशंट रूल से निकलेगा. क्वोशंट रूल 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 2bt माइनस 2bt एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ 2bt इज 2b, t का डेरिवेटिव 1 है माइनस 2bt और यहाँ से फिर 2t आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आया 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 4b टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने से ये टी स्क्वायर वाली टर्म्स जो है वो ऐड हो जाएंगी तो 2b माइनस 2bt स्क्वायर ओवर दिस आ गया. 2b इधर से कॉमन 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर. तो d इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास dx ओवर dt आया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया dt ओवर dx आ गया. फिर y को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t तो हमारे पास dy ओवर dt ये वाला आंसर आया. हमने फाइंड करना है dy ओवर dx, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे हम. dy ओवर dx इज इक्वल टू dy ओवर dt मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर dx. dy over dt is 2b 1 minus t square over 1 plus t square का square multiplied by dt over dx is 1 plus t square का square over minus 4at. तो ये 1 plus t square के square से कैंसिल हो जाएगा और 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 2 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास b 1 minus t square over 2 at आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन जो है वो इसके साथ आ जाएगा. सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस पैरामीट्रिक इक्वेशंस. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. हम वही क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में है. क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट्स थे, सेकंड पार्ट ही था सिर्फ, हमने फर्स्ट पार्ट को एक्स्ट्रा किया. क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है कि प्रूव दैट y dy over dx plus x is equal to 0 if x is equal to 1 minus t square 1 plus t square, y is equal to 2t over 1 plus t. ये प्रूव करना है हमने. इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसी तरह पहले dx ओवर dt निकालेंगे, फिर dy ओवर dt निकाल के चेन रूल अप्लाई करेंगे तो आपके पास dy ओवर dx आ जाएगा. ये आपका आंसर दिया हुआ है उसने, ये प्रूव करना है. लेकिन dy ओवर dx हमें निकालना है तो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे बिल्कुल उसी तरह जैसे पीछे हमने किया था बाय अप्लाइंग द चेन रूल एंड वी गेट दिस आंसर. dx ओवर dt ये आ गया, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो dt ओवर dx आ गया. नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस. उसमें सिर्फ ये था कि इसके साथ a था और इसके साथ b था, जबकि यहाँ पे a और b नहीं है, बाकी डिफरेंशिएशन सारी उसी तरह ही है. dy ओवर dt निकालने के लिए हमने इसका रेसिप्रोकल इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये फिर क्वोशंट रूल लगेगा, नीचे के फंक्शन का स्क्वायर नीचे वाला फंक्शन एज इट इज 2t का डेरिवेटिव माइनस 2t और इसका डेरिवेटिव
ये आ जाएगा 1 प्लस टी स्केयर 2 माइनस 2t। इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 प्लस 2t स्केयर माइनस 4t स्केयर और 2 माइनस 2t स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर आ गया। डी वाई ओवर डी टी आपके पास 2 कॉमन लेने से 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर का स्केयर आ गया। Now we will find dy over dx by applying chain rule. dy over dx, dy over dt multiplied by dt over dx. dy over dt is 2 into 1 minus t square over 1 plus t square का square multiplied by dt over dx is 1 plus t square का square over minus 4t. This is cancelled with this, 4 is cancelled with 2 and we are left with minus 1 minus t square over 2t. अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स ये आ गया। प्रूव आपने ये करना है, इसमें डी वाई ओवर डी एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दें। लेफ्ट साइड को करेंगे तो राइट साइड को भी करना पड़ेगा। तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई 1 माइनस टी स्केयर ओवर 2t। वाई की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन में आपको दी हुई है 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 2t ओवर 1 प्लस टी स्केयर, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय दिस y जो कि इसके इक्वल है। अब ये यहाँ पे आप 1 माइनस टी स्केयर 2t से कैंसिल हो गया और माइनस 1 माइनस टी स्केयर ओवर 1 प्लस टी स्केयर है, ये आ गया y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। फिर क्या है कि y ओवर डी एक्स में x को ऐड करना है, तो दोनों तरफ आप x को ऐड कर दें, इधर भी और इधर भी माइनस x आ जाएगा। ये जो है वो x के इक्वल है, ऐड ना भी करें तो ये जो माइनस 1 माइनस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर है ये आपका x है, तो इसको x से रिप्लेस कर दें या इधर भी x प्लस कर दें और इधर भी x प्लस कर दें और फिर आप x की वैल्यू पुट करेंगे तो वो x की वैल्यू पॉजिटिव और ये नेगेटिव आ जाएगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि 1 माइनस टी स्केयर और 1 प्लस टी स्केयर को x से रिप्लेस कर दें। अब माइनस एक्स है तो इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यही आपने प्रूव करना है। इन दोनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, या दोनों तरफ एक्स को ऐड कर लें या इसको एक्स से रिप्लेस कर दें और सारी टर्म को एक साइड पे लेके इक्वल टू 0 आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन। Question number 5. In this you are asked to differentiate. There are two functions. You are asked to differentiate this function with respect to this function. इसका पहला पार्ट है, तो इस फंक्शन को हम किसी एक वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेंगे और इस फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर लेंगे। सो लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, इसको हमने y से के इक्वल रख दिया और इसको हमने एक नए फंक्शन u के इक्वल रख दिया। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन मींस विद रिस्पेक्ट टू u, तो dy ओवर du आपने फाइंड करना है। डिफरेंशिएट मीन इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, ये y है, इसके रिस्पेक्ट ये u है, तो dy ओवर du हम फाइंड करेंगे। सो पहले आप इसको डिफरेंशिएट कर लें, dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका डेरिवेटिव इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर एज इट इज और ये जो है x की पावर माइनस 2 और इसका डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x की पावर माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2x होना है, तो ये माइनस और माइनस मिलके प्लस 2x की पावर माइनस 3 हो जाएगा। तो इधर से 2 कॉमन आ गया, x प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब, इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाया और इसका एलसीएम लिया तो आपके पास x4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 3 आ गया। सो दिस इज dy ओवर dx। अब u को हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट u विद, बिकॉज u इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल x। सो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4x की पावर 3 आ जाएगा। तो अब हमने फाइंड करना है dy ओवर du, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u, तो हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy ओवर dx नीचे और dx ओवर du। dy ओवर dx आपके पास ये है 2 इंटू एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब और dx ओवर du जो है वो 1 ओवर 4 एक्स क्यूब है, 1 ओवर 4। जो dy ओवर dx है तो dx ओवर du 1 ओवर 4 एक्स क्यूब आ जाएगा। इसको आप ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इधर से 4 और 2 कैंसिल हो गया और x4 प्लस 1 ओवर
2x की पावर 6, ये x की पावर 3 ये और x की पावर 3 ये जो है मल्टीप्लाई होकर 2x की पावर 6 आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर योर लॉन्ग क्वेश्चन, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक को विद रिस्पेक्ट टू सेकंड आपने डिफरेंशिएट करना है। तो एक फंक्शन को y और दूसरे फंक्शन को u कह लेंगे, तो इसका मतलब इस फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करना है, तो हम dy ओवर du निकालेंगे। पहले हम इस फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि y फंक्शन है किसका, वेरिएबल यहाँ पे x है, u फंक्शन है x का, और फिर चेन रूल अप्लाई करके हम dy ओवर du फाइंड आउट कर लेंगे। This is third part of question number 5. Now here you are asked to differentiate this function with respect to this function. So इसको y और इसको u जो है वो सपोज कर लेते हैं, और फिर y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, x के प्लस 1 ओवर x के माइनस 1। कोशंट है तो यहाँ पे कोशंट रूल लग जाएगा, कोशंट रूल लग के आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास dy ओवर dx जो है वो ये आ जाएगा। So we have done this type of question अर्लियर। सो यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई करके ये सारा किया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं dy ओवर dx निकाल लिया। फिर हम इस फंक्शन को u को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और du ओवर dx फाइंड करेंगे। यहाँ पे फिर ये क्वोशंट फंक्शन है तो इस पे भी हम क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा du ओवर dx इज 2 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर। हमने फाइंड करना है dy ओवर du, तो चेन रूल अप्लाई करेंगे, dy ओवर du इज इक्वल टू dy ओवर dx मल्टीप्लाइड बाय dx ओवर du। dy ओवर dx इज माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1, और du ओवर dx ये था, आप लगा रहे हैं dx ओवर du, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर ओवर 2, ये 4 और 2 कैंसिल होकर माइनस 2x आ गया, और नीचे जो x स्क्वायर माइनस 1 है उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये x प्लस 1 इस पावर से कैंसिल हो गई और आपके पास माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1 ओवर x माइनस 1 जो है वो dy ओवर dx आ गया, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस। Now this is fifth part of question number 5. You are asked to differentiate this function with respect to this function. तो पिछले क्वेश्चन में भी इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना था एक और फंक्शन के रिस्पेक्ट, तो इसका डेरिवेटिव तो वही पीछे जैसे हमने फाइंड किया है उसी तरह क्वोशंट रूल लगा के फाइंड कर लेंगे। पहले आप इसको सपोज करें दिस इज इक्वल टू y एंड दिस इज इक्वल टू u, इस y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्वोशंट रूल लगेगा और क्वोशंट रूल लगा के आप इसका डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। फिर इसको आपने डिफरेंशिएट करना u को विद रिस्पेक्ट टू x, du ओवर dx इज d ओवर dx x क्यूब का डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास है du ओवर dx, चेन रूल में dy ओवर dx और dx ओवर du आना है, तो इसका रेसिप्रोकल लेके आपके पास 1 ओवर 3x स्क्वायर आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे dy ओवर dx की वैल्यू है माइनस 4x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय dx ओवर du की वैल्यू है 1 ओवर 3x स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यू विल गेट dy ओवर dx एज माइनस 4 ओवर 3x x स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे du आना है, dy ओवर du इज इक्वल टू दिस। This is my profile. Keep doing practice because practice makes knowledge perfect. And thank you for watching. Allah Hafiz.